Good morning, everyone. This is Anilofer, ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, from today, we are starting the syllabus of internal assignment A1. Our subject is SST, and in SST, we are starting from history. So, in today's video, I will explain you chapter 1 of history, that is what, where, how, and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. So in this chapter we will discuss over the topics that what has happened in the past, where has happened in the past, how and when. So we will discuss over the topics related to the past only. Now let's get started. First of all, I will give you the introduction of the chapter. So let's read Rashida's question. So here we are talking about a girl, Rashida, and what is her question? Let's see. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How, she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी एंड सडनली उसकी जो निगाह है वो पड़ती है एक छोटी हेडलाइन के ऊपर जहाँ लिखा था 100 साल पहले. एंड शी वॉज वंडर्ड एट दैट टाइम. वो आश्चर्यचकित हुई पढ़कर कि कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था. एंड दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Finding out what happened. So how we can find out that what had happened in the past? If we want to know about yesterday, what had happened yesterday, so you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. So आप क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, and you can know what happened in the past yesterday. If you want to know what has happened last year, so you can ask somebody who remembers. किसी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं जिसको याद हो. But what about long ago? But अगर आपको बहुत ही पुराने समय का जानना होगा, then what? Let us see how it can be done. चलिए जानते हैं कि हम इतने पुराने समय के बारे में कैसे जान सकते हैं. What can we know about the past? हम क्या जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने बीते हुए समय के बारे में. There are several things we can find out. What people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists. So कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं जो हमारे पास्ट से रिलेटेड हैं. लाइक पास्ट में लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे. हम इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जान सकते हैं जैसे कि हंटर्स, शिकारी, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स जो रूल करते थे, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. सो इन सारे लोगों के बारे में भी हम जान सकते हैं इफ़ वी वांट टू नो अबाउट द पास्ट. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि पास्ट में बच्चे कौन से गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरीज सुनते थे, कौन से प्लेस देखते थे एंड कौन से गाने गाते थे. एंड दैट इज रिलेटेड टू द पास्ट ओनली. सो मेनी थिंग्स आर देयर विच वी कैन find out if we want to know about the past. Next topic is where did people live. So if we are talking about the past, so in the past time where did people live? लोग कहाँ रहते थे? First question will come in the mind. People have lived along the banks of the river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. So लोग क्या करते थे पुराने समय में, कई सालों पहले, कई 100 सालों पहले एक्चुअली नदी के किनारे रहा करते थे. सो उनमें से कुछ जो थे वो जो शुरुआती समय के लोग हुआ करते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे. गैदरर्स जो लोग चीज़ें इकट्ठा करते हैं. सो वो क्या करते थे, अपने फूड को गैदर करते थे, यहाँ वहाँ से इकट्ठा करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. वो लोग क्या करते थे, वो जानते थे जो भी उनके आसपास सराउंडिंग थी फॉरेस्ट की, जंगल के पास रहा करते थे. सो जो भी प्लांट्स थे उन प्लांट्स की स्पेशलिटी जानते थे, दैट विच प्लांट इज ईटेबल एंड विच प्लांट इज नॉन ईटेबल. सो वो क्या किया करते थे, उन्हीं प्लांट से, उन्हीं ट्री से रिलेटेड रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, और भी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं जंगल से मिलने वाली चीज़ें, उनको वो अपने फूड के रूप में
कलेक्ट किया करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे. एंड दैट्स हाउ दे लिव्ड इन द पास्ट एंड कलेक्टेड देयर फूड इन द पास्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So here you can see the picture of map 1, that is physical map of the subcontinent, which is given on page number 2 in your books. You can see many places here that we will discuss about the places in the chapter. You can see Garo Hills. You can see here Satpura, Vindhyas, Narmada. You can see Bay of Bengal. Many places you can see like Kirthar Hills, Suleiman Hills, Indus. Many places are given, that Thar is given. So we will discuss about these places also, that how these places are related to the past, that we will discuss further. Now let's move forward. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. So as I have shown you just now, the Suleiman and Kirthar hills, so they are located in the northwest. Some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. So कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मैन एंड वुमेन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया था, खेती करना शुरू किया था, जैसे कि वीट एंड बार्ले हैं, लगभग 8,000 साल पहले. तो ये प्लेसेस जो हैं वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं वो किरथार हिल्स और सुलेमान हिल्स में ही लोकेटेड हैं. People also begin rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोगों ने क्या किया, सबसे पहले शीप, गोट और कैटल जैसे जो एनिमल्स हैं इनका पालन पोषण शुरू किया और गांवों में रहना शुरू किया. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. So I have shown you Garo hills also. They are located in northeast, and Vindhyas also I have shown you, that is located in central India. You can locate these places in the map yourself also. These were some of the other areas where agriculture developed. So ये जो थे कुछ और एरियाज थे जहाँ पर खेती जो थी वो ज़्यादा विकसित हुई. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. So सबसे पहले वो जगह जहाँ पर चावल की खेती स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर है, to the north of the Vindhyas, विंध्यास के नॉर्थ में. Trace the river Indus. I have shown you the river Indus also and its tributaries. So what are tributaries? Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. Tributaries क्या होती हैं, ये छोटी छोटी सी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं. सो आपको ट्रेस करना है, आपको लोकेट करना है इंडस रिवर को एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. So लगभग 4700 साल पहले कुछ ऐसी शुरुआती सिटीज़ हैं जो यहाँ पर बहुत फली फूली थी इन नदियों के किनारों पर. Later about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. So इसके बाद लगभग 2500 साल पहले सिटीज़ जो है वो डेवलप्ड होना इन नदियों के किनारे शुरू हुई, विकसित होना शुरू हुई, जैसे कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे, और जो सी कोस्ट है हमारे जो समुद्री इलाके हैं वहां पर भी सिटीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. Locate the Ganga and its tributary called the Sun. So in the map you can locate Ganga and its tributary which is called Sun. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. So पुराने समय में, प्राचीन समय में क्या था, जो एरिया था इन रिवर्स के साथ साथ वाला जो गंगा के साउथ में पड़ता है, टू द साउथ ऑफ द गंगा मीन्स गंगा रिवर के साउथ का जो एरिया है, इन नदियों के पास पास का जो इलाका है, सो ये जाना जाता था मगध के नाम से. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल. यहाँ के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, वो बहुत पावरफुल थे. एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा राज्य जो है वो स्थापित किया था. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. और जो किंगडम्स थे, जो राज्य थे, वो कंट्री के दूसरे हिस्सों में भी सेटअप किए गए थे, स्थापित किए गए थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू पीपल ट्रेवल्ड इन द पास्ट. सो लोग जो थे वो पास्ट में, हमारे बीते हुए समय में ट्रैवल क्यों करते थे, यात्रा क्यों करते थे. थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. सो क्या था, लगातार लोग सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करके जाते थे. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल.
जो हिल्स थी, हाई माउंटेन्स थे, इनमें बहुत सारे हिमालयाज था, जैसे डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, इन्होंने क्या किया, जर्नीज को ये डेंजरस तो बनाते थे, ऑब्वियसली इन्हें क्रॉस करना बहुत डेंजरस हुआ करता था, लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ. So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like फ्लड्स और ड्रॉट्स. लोग क्या करते थे, मैन एंड वुमेन, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अपना लाइवलीहुड सर्च करने के लिए. एंड जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लाइक प्राकृतिक आपदाएं हैं, कभी बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड. कभी क्या होता था, लोग आर्मीज में मार्च करते हुए दूसरे एरियाज में जाते थे ताकि दूसरी लैंड्स को वो जीत सकें. Besides, merchants traveled with caravans और ships carrying valuable goods from place to place. और इसके साथ ही जो merchants थे, व्यापारी थे, वो कारवाज में ट्रैवल किया करते थे. उनके शिप्स होते थे जिनमें वो बहुत वैल्यूएबल सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह उसको सेल करने जाते थे. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. इसके साथ ही जो रिलीजियस टीचर्स थे, प्रीस्ट वगैरह थे, वो क्या करते थे, गांव गांव जाया करते थे, शहर शहर जाया करते थे अपनी इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस लोगों को देने के लिए. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. और इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो एडवेंचर के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे. वो नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहते थे, नई चीज़ों की खोज करना चाहते थे और एक्साइटिंग प्लेसेस ढूंढना चाहते थे. ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. और इन सारी चीज़ों ने क्या किया, लोगों के आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना शुरू किया. Now the next topic is, why do people travel nowadays? So in the past people traveled because of the reasons which I have explained you, but now in present, why people travel? Why do people travel? Look at map 1 once more, which I have shown you. दोबारा देखिए. Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. आपने देखा जो hills हैं, mountains हैं, seas हैं, ये क्या करते हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स फॉर्म करते हैं सब कॉन्टिनेंट में. वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, जबकि ये मुश्किल था इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना. दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज. लेकिन जो चाहते थे वो इन माउंटेन्स को और इन सीज को, इन समुद्रों को भी क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. दूसरे frontiers के उस पार से भी लोग जो है वो subcontinent में आते थे और यहाँ आकर बस जाते थे. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. इन मूवमेंट्स ने क्या किया, लोगों के, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो संस्कृति है, इसको इनरिच्ड किया. एंड लोगों ने जो भी उनके आइडियाज़ थे, पत्थर की खुदाई को लेकर, म्यूज़िक कंपोज करने को लेकर, कुकिंग करने को लेकर, कई सालों तक उन्होंने क्या किया, इन मूवमेंट्स के माध्यम से अपने इन आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज नेम्स ऑफ द लैंड. हाउ our country got the name that is called India. So how it got the name India? Two of the words we often use for a country are India and Bharat. दो शब्दों का हम यूज करते हैं अपने देश के लिए, that is India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. So जो word है India वो Indus river से आया है, which is called Sindhu in Sanskrit. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. आप एटलस लीजिए, उसमें ईरान को एंड ग्रीस को आप फाइंड कीजिए. द ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land of the east and the land to the east of the river was called India. So जो इरानियंस हैं, इरानियंस और ग्रीक्स थे, वो उन्होंने क्या किया, वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे लगभग 2500 साल पहले, और वो फैमिलियर थे इंडस रिवर से. वो क्या करते थे, उसको हिंदोज बुलाते थे और इंडोज बुलाते थे. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. और जो लैंड थी इस नदी की ईस्ट में, उसको इंडिया कहा जाता था. द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. और जो लोग नॉर्थ वेस्ट में एक ग्रुप रहा करता था,
उनके लिए यूज किया जाता था वर्ड भारत, and who are mentioned in the Rigveda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 35 years ago. Later it was used for the country. So इसके साथ ही जो हमारा वर्ड है ये भारत, ये ऋग्वेद में भी mentioned है, जो कि अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है, संस्कृत में लिखी गई एक कॉम्पोजिशन है जो लगभग 3500 साल पहले लिखी गई थी. एंड उसके बाद क्या हुआ, इसको कंट्री के नेम के रूप में यूज किया जाने लगा, एंड दैट्स हाउ इंडिया गॉट द नेम्स दैट इज भारत एंड इंडिया. Finding out about the past. How we can find out the past? Now we will discuss. There are several ways of finding out about the past. Past को जानने के कई तरीके हैं. One is to search for and read books that were written long ago. एक तरीका है कि पुरानी किताबों को खोजा जाए और उनको पढ़ा जाए जो पहले के समय में लिखी गई थी. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. So इनको क्या बोला जाता है, बुक्स को, इनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखी गई हैं. और इनमें जो वर्ड है लैटिन वर्ड मनु, उसका मीनिंग है हैंड, मीन्स ये हाथ से लिखी गई किताबें हैं. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये अक्सर पाम लीफ जो होती है उस पर लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च. और इसके साथ ही एक पेड़ की स्पेशल छाल हुआ करती थी जिसको बिर्च के नाम से जाना जाता था, उस पर लिखी जाती थी, विच ग्रोज इन द हिमालयाज. और ये जो बिर्च है वो कहाँ पर उगती थी, हिमालयाज में. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. So, क्या हुआ, जैसे जैसे कई साल बीते, उसके साथ जो कई सारी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, बिकॉज वो लीफ के ऊपर लिखी गई थी तो उन्हें कीड़ों ने खा लिया, एंड कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कुछ सर्वाइव भी कर गई, उनको टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में सुरक्षित करके रख दिया गया. These books dealt with all kinds of subjects. So ये जो manuscripts, ये जो books थी हैंड रिटन, इनमें सारे सब्जेक्ट मीन्स दिए गए थे. रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक जो भी विश्वास थे, एंड प्रैक्टिसेस, जो प्रथाएं हुआ करती थी पास्ट में, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस. बिसाइड्स देयर वो एपिक्स, पोएम्स, प्लेस. इसके साथ ही इन बुक्स में एपिक्स मिलते हैं, पोएम्स, प्लेस मिलते हैं. मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्रकृत, लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल. सो ज़्यादातर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत में और प्रकृत भाषा में लिखी गई हैं. प्रकृत जो है वो एक लैंग्वेज है जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा बोली जाती थी, एंड तमिल के द्वारा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. You can see a manuscript here, a page from a palm leaf manuscript. So ये एक manuscript का पेज है which you can see here, palm leaf पर लिखी गई है. This manuscript was written about 1000 years ago. ये manuscript जो है वो 1000 साल पहले लिखी गई है. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. जो पाम की पत्तियां हुआ करती थी उनको काट कर एक साथ बांध दिया जाता था बुक्स बनाने के लिए. टू सी अ बिर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 45. अगर आपको बिर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट देखना है आप पेज नंबर 45 पर देख सकते हैं. सो दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्क्रिप्शंस. सो इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है लेख. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस इफ वी वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट. सो हम इंस्क्रिप्शंस भी स्टडी कर सकते हैं. सो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल. ये राइटिंग्स होते हैं, ये लेख होते हैं जो हार्ड सरफेसेस पर लिखे जाते हैं, जैसे कि पत्थर होता है, मेटल होता है, उन पर लिखे जाते थे. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. सो कभी कभी क्या करते थे राजा, जो उनके ऑर्डर्स हुआ करते थे, आदेश होते थे, उनको खुदवा देते थे वो ऐसे ही मेटल और स्टोन्स पर, ताकि लोग उनको देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. इसके साथ ही दूसरे प्रकार के इंस्क्रिप्शंस भी हुआ करते थे जहाँ पर जो भी राजा और रानी हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो भी उनके एक्शंस होते थे उनको रिकॉर्ड कर देते थे, उन अपना वर्णन करते थे, अपने जो भी उनके एक्शंस होते थे उनके बारे में. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. सो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि राजा अक्सर क्या करते थे, जब वो किसी युद्ध को जीत जाते थे तो उसका वर्णन वो क्या करते थे, लेख के रूप में इंस्क्रिप्शंस पर लिखा दिया करते थे.
You can see the inscription here, an old inscription it is. This inscription dates to about 2250 years ago, 2250 साल पहले का है, and was found in कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। कांधार में मिला था, जो कि प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान में आता है। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। ये अशोका के ऑर्डर के ऊपर लिखा गया है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट। जब कभी भी हम कुछ लिखते हैं देन हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइंस। स्क्रिप्ट्स में क्या होते हैं, आपके लेटर्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिनके थ्रू हम रीड करते हैं। When we read what is written or speak, we use a language. So जब कभी भी हम रीड करते हैं जो लिखा हुआ होता है, हम एक लैंग्वेज, एक भाषा का यूज करते हैं। This inscription was written in two different scripts and languages, Greek top and Aramaic below, which were used in this area. So ये जो आपकी है यहाँ पर दे रखी है इंस्क्रिप्शन, ये दो अलग अलग स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। ग्रीक टॉप पर जो है लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज है, एंड जो नीचे दे रखी है वो एरामिक है, जो कि उस समय पर इस एरिया में यूज की जाती थी। आर्कियोलॉजी, व्हाट इज आर्कियोलॉजी? There were many other things that were made and used in the past. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी जो पास्ट में बनाई गई थी और इस्तेमाल की जाती थी। Those who study these objects are called archaeologists. So जो लोग इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं पास्ट के, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। They study the remains of buildings made of stone and brick, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। ये लोग क्या करते हैं, जो पुराने समय की बिल्डिंग्स के शेष बचे हुए हैं, ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, इनकी स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। इसके साथ ही ये एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं, खुदाई करते हैं, ज़मीन के अंदर तक गहराई में खोदते हैं ये टूल्स खोजने के लिए, हथियार खोजने के लिए, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स पुराने समय की। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर्स ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल। सो ये जो भी ऑब्जेक्ट्स इनको मिलते हैं इस एक्सकेवेशन के दौरान, ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोन के बने हुए भी होते हैं, बोन के होते हैं, कुछ बेक्ड और क्ले के होते हैं और मेटल के होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो जो हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हमें पास्ट में जो इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज के बने होते हैं, ये लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. So archaeologist क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि लोग पास्ट में क्या खाया करते थे। जो एनिमल्स, बर्ड्स और फिश होते हैं, इनकी बोन्स को भी स्टडी करते हैं। Plant remains survive far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt. They survive in a charred form. So जो plants के remains होते हैं वो rarely survive कर पाते हैं अगर seeds और pieces of woods जो होते हैं ये burn हो जाते हैं, so ये एक charred form में survive करते हैं। Now let's move forward. Here you can see a pot in the left of the picture. A pot from an old city. एक पुरानी city का pot है which आर्कियोलॉजिस्ट गॉट इन द एक्सकेवेशन, जो आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान मिला था। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। इस प्रकार का पॉट जो है वो 4700 साल पहले यूज़ किया जाता था। एंड इन द राइट यू कैन सी एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, एक प्रकार की ओल्ड सिल्वर कॉइन है। कॉइन्स सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। इस प्रकार की कॉइन का चलन जो था वो 2500 साल पहले हुआ करता था। In what ways is the coin different from the ones we use today? That you have to differentiate कि ये जो coin दे रखी है ये आज की जो coin जिनका हम use करते हैं उनसे किस प्रकार अलग है। Next topic is who are historians? Historians कौन होते हैं? So historians these are the scholars who study the past. Historians कौन होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं। एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द पास्ट एंड हिस्टोरियंस स्टडी द पास्ट। Often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. So often use the word source to refer to the information, जो भी information मिलती है manuscript से, inscription से, archaeology से। Once
सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। एक बार जब सोर्सेज, स्रोत मिलना शुरू हो जाते हैं, सो जो लर्निंग होती है पास्ट के बारे में वो एडवेंचर बन जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, एक एक करके कड़ी जुड़ती जाती है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find out about our past। सो क्या होता है, जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये डिटेक्टिव्स, जासूस की तरह काम करते हैं। जो भी इनको सोर्सेज मिलते हैं, इनके क्लू को ये कड़ियां जोड़ते हुए चलते हैं पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट या फिर कई सारे पास्ट। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट? आपने नोटिस किया जो हमारी हिस्ट्री बुक का टाइटल है दैट इज आर पास्ट। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people। So यहाँ हमने क्या किया है, पास्ट को प्लूरल के रूप में यूज किया है ताकि आप लोग ध्यान दे सकें कि जो पास्ट था वो लोगों के ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जो हर्डर्स और फार्मर्स थे उनकी लाइफ्स, उनके जीवन जो था वो राजा और रानियों से अलग था। The lives of merchants were different from those of craft persons and so on। और ऐसे ही जो merchants थे, व्यापारी थे, उनका जीवन अलग था, craft persons थे, और इसी प्रकार से काफ़ी सारे differences थे सबकी lives में। Also as is true even today, people follow different practices and customs in different पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ तक कि आज भी लोग अलग अलग प्रकार की प्रथाओं का चलन है, यूज है, जो है वो अलग अलग पार्ट्स हैं कंट्री के, उनमें। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आजकल जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो उनका जो फूड होता है वो फिशिंग के थ्रू होता है ज़्यादातर। हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंट करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, और इसके बिल्कुल अपोजिट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। सो जो लोग शहर में रहते हैं वो अपनी फूड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, लोग उनको सप्लाई करते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, और ऐसे ही डिफरेंसेस जो थे वो पास्ट में भी हुआ करते थे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू डेट्स मीन। डेट अर्थात दिनांक का क्या अर्थ होता है। इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 and something। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। So अगर कोई आपसे डेट पूछता है तो प्रोबेबली आप क्या करेंगे, आप दिन बताएंगे, महीना बताएंगे, साल बताएंगे, लाइक 2000। सो जो ये ईयर्स होते हैं ये जनरली काउंट किए जाते हैं किसकी बर्थ से, जीसस क्राइस्ट जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के, उनकी बर्थ से। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सो 2000 का मीनिंग ये है कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 2000 साल बाद। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on। So जितनी भी dates हैं before the birth of Christ वो कैसे count की जाती हैं, usually backwards में count की जाती हैं, and they have the letters BC before Christ। In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। सो इस बुक में हम क्या करेंगे, उन डेट्स को रेफर करेंगे जो बैक जा रही हैं। मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2000 रहेगा, 2000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और उनसे बैक जाकर हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेटर्स विद डेट्स। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। मैंने बता दिया कि BC जो है वो आपको बिफोर क्राइस्ट है उसका फुल फॉर्म। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। डेट्स से पहले आपको कभी कभी AD भी दिखाई देता होगा। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स। ये 2 लैटिन वर्ड्स हैं, एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, एग्जाम्पल क्राइस्ट। सो 2005 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2005। सो अगर हम 2005 लिखेंगे तो इसको हम AD 2005 भी लिख सकते हैं। Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC। So कभी कभी क्या होता है, CE का यूज़ किया जाता है AD की जगह पर and BCE का यूज़ किया जाता है BC की जगह पर। The letter CE stand for common era and BCE for before common era।
We use these terms because the Christian era is now used in most countries in the world. हम इन टर्म्स का यूज इसीलिए करते हैं बिकॉज क्रिश्चियन era जो है वो ज़्यादातर पूरे विश्व की कंट्रीज में यूज किया जाता है. इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो. और भारत में हमने इस प्रकार की जो डेटिंग है इसका यूज करना लगभग 200 साल पहले शुरू किया था. एंड समटाइम्स द लेटर्स बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड. और कभी कभी लेटर्स दिए होते हैं बीपी, इट मीन्स बिफोर प्रेजेंट. सो कॉमन इरा मीन्स हम एक कॉमन इरा की बात कर रहे हैं एंड बीसीई बिफोर कॉमन इरा, दैट मीन्स कॉमन इरा से हम पहले की बात कर रहे हैं. सो दिस वॉज योर चैप्टर 1, what, where, how and when about the past. I have explained the whole topic thoroughly. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.